this 1 month, like, even I was not so much into spiritual kinds of things, but recently, like, there have been from 2021, I guess, yeah, from the time where I was not well, that's when I realized the power that all these things carry, like whether it be your mind, whether it be your you can say thought process, जो भी चीजें आपके साथ होती हैं या जिस तरीके से आप एक चीज को लेके रिएक्ट करते हो, तो वो चीज मैंने 2021 से सीखना स्टार्ट किया कि लाइक हाउ यू कैन कम डू अ क्विक कम बैक, हाउ यू कैन बी स्पिरिचुअली ग्राउंडेड विथ वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू. सो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, कम से कम 6 to 7 एक्टिविटीज हैं जो मैं इस पीरियड में करती हूँ फ्रॉम नवंबर टू डिसम्बर. ओके, रीजन बीइंग एक ये मैजिकल पोर्टल होता है विच इज 11/11. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू सी, ईयर एंड होने वाला होता है, लाइक वी आर एंटरिंग इनटू December 2024 and 2023, I'm sorry, and then we'll be moving on to 2024. That's a new year, right? And with the new year, आपका जो बिजनेस होता है उसमें ये जो लास्ट क्वार्टर होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, बिकॉज थर्ड क्वार्टर नॉर्मली बिजनेसेस में अच्छा होता है ड्यू टू फेस्टिव सीजन. इंडिया में अगर आप इंडियन बिजनेसेस देखो ना, तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस देखो तो वो फेस्टिवल्स की वजह से चल रहे होते हैं, राइट? एंड अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस देखो तो वो भी कुछ स्पेसिफिक डील्स की वजह से चल रहे होते हैं, like Black Friday, okay, Cyber Monday, right? So, like I have a living example, like I have my brother who is into online this deal stuff and all that stuff. He makes double of what he earns throughout the year during the 7 days of from Black Friday to Cyber Monday. That's how powerful it is in international markets. Okay. This year we were observing, me and my brother, we both were observing, and we were like, Black Friday deals are killing in India. Okay. So I recently visited a mall. You are seeing Black Friday posters there. So Black Friday kya? It's a ritual. Matlab November, last November in US with American countries or Western countries, they celebrate it as Thanksgiving. Okay, so last November ka last Friday, they take it as Thanksgiving. Now what happens in Thanksgiving is, पहले ये होता था कि there used to be so much rush in the malls and बोल दो ना जैसे थोक के भाव में सामान मिलना, that kind of a stuff used to happen while on that Black Friday वाला जो event होता था. टुडे विथ द साइबर जोन एंटरिंग कि आपका ई कॉमर्स एंटर कर चुका है, you have cyber deals flowing and all that stuff happening, a lot of people selling their products online and selling their services online. This in the past 5 years, this Black Friday thing took a totally different structure. ओके, तो ये कुल मिला के मतलब बात ये होती है कि ये जो सितंबर से लेकर के जो दिसंबर वाला जो क्वार्टर होता है फॉर एनी बिजनेस, इट्स वेरी पावरफुल. So if you have planned that September to December wala quarter, just that quarter, you can make a hell amount of money. Okay. So in fact, like this time, even after Black Friday, I was telling my brother, shit, why didn't I do a Black Friday sale? Like, I didn't do it thinking that it's okay. Like, we have a community. How does that matter? We have an Indian audience. But after realizing that even Indian entrepreneurs are into it today, I think we also must have done that. Okay, so let's see, now we'll plan the next year. So this is how powerful these 3 months are, and when you leave a powerful stage and you enter to the last quarter of the business, होता क्या है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई होती है. यार हमारा प्रोडक्ट इतना बिक रहा था तो अभी भी बिकना चाहिए, राइट? बट देन इट फॉलोज विद अ हॉलीडे सीजन, लाइक दिसंबर इज समवेयर, दिसंबर एंड में पीपल आर इनटू अ हॉलीडे मोड, जहाँ पे हॉलीडे से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो डेफिनेटली यू आर मेकिंग मनी. बट अगर आपका बिजनेस हॉलीडे या लग्जरी या रिट्रीट इन सब चीजों से अगर रिलेटेड नहीं है, तो मे बी समवेयर इट माइट बी सबड्यूडेड फॉर दोस 15 days स्टार्टिंग राइट फ्रॉम 15 दिसंबर टू 1 जनवरी. दिस हैज स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया एज वेल. पहले यूएस में होता था कि थैंक्स गिविंग से लेकर के पूरा 1 जनवरी तक मार्केट बहुत डाउन होता था,
राइट. इनफैक्ट आई हैव टुडे आल्सो माय क्लाइंट्स हु से कि नहीं यार मार्केट अभी भी डाउन रहेगा, मतलब फुल मंथ डाउन रहेगा इन यूएस. ओके, सम ऑफ माय क्लाइंट्स आर देयर जिनका टारगेट मार्केट यूएस है. सो दे आर स्पीकिंग अबाउट दिस कि यार इतना मतलब फर्क है मार्केट्स में. एंड अगर आप उसको आज स्टडी करो कि आज इंडियन मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो इंडियन मार्केट्स भी आज के डेट में ऐसे ही बिहेव करते हैं. व्हाई? जैसे ही क्रिसमस तो हम ज्यादा मनाते नहीं है, राइट. दिवाली हम मनाते हैं, हम घर से बाहर जा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि दिवाली है, राइट. So Indians have this ritual that we don't leave homes in Diwali. We normally go to our relatives' places which are very close by, right? So chota get-togethers kind of stuff. Yeah, having in-house parties and all those happens in Diwali. But if you consider Christmas vacations, that is your winter vacations, kids get winter vacations in India, right? Which are good 10 to 12, 15 days, right? And then इवन ऑफिसेस गेट दैट वीक, थोड़ा छुट्टी हो ही जाता है, लाइक सैटरडे संडे बीच में, अगर क्रिसमस आ गया आगे पीछे, फिर सैटरडे संडे, मतलब समथिंग और द अदर कीप्स ऑन हैपनिंग. एंड फर्स्ट जैन इज एनी विच वेज ऑफ फॉर मेनी ऑफिसेस, राइट. सो अल्टीमेटली दैट वीक बिकम्स अ वीक ऑफ. मतलब ज्यादा कुछ बिजनेस आपको होना नहीं है, ज्यादा कुछ बिजनेस डिसीजंस लोगों को लेना नहीं है. अगर आपका D2C ब्रांड है, D2C मतलब अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हो, जैसे आपका बिजनेस है हेजल, राइट, योर्स इज अ D2C ब्रांड. D2C ब्रांड मतलब कि आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हो, जहां कस्टमर एक डिसीजन मेकर है. ठीक है, वो जाएगा खरीद लेगा, राइट. कोर्स देखेगा, अगर उसको समझ में आएगा खरीद लेगा, यूज करेगा, राइट. तो कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है. सो दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस स्लो डाउन ड्यूरिंग द डिसम्बर फेज. ओके, अभी वो स्लो डाउन से उसको ऊपर लेके जाना इज अ चैलेंज फॉर मेनी बिजनेसेस, right? Not only small businesses, but even big businesses struggle, and they spend a lot over their marketing campaigns over the month of January, because they need to ensure कि उनका जो ईयर एंड है वो खाली नहीं जाए, और कुछ ना कुछ तो वो मार्च तक बेच ही लें. बिकॉज अब उनके ना वैल्यू पे बात आ जाती है, जो आप वैल्यूएशन स्टार्टअप्स में जो वर्ड यूज करते हो वैल्यूएशन की, यार इतना आपने साल भर में कमाया, आपने रेवेन्यू स्केल बनाया, आपने प्रॉफिट बनाया, उनको पता है अप्रैल में ऑडिटिंग होगी, रिपोर्ट्स बनेंगे कि आपने साल भर में क्या किया, राइट. सो फॉर स्मॉल बिजनेसेस ऑल्सो, इफ वी फॉल इन टू दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग यू हैव टू फॉल इन टू दिस स्ट्रक्चर, राइट. सो व्हाई नॉट फॉल फ्रॉम द राइट टाइम इटसेल्फ, कि हमें पता होना चाहिए कि यार ईयर एंड का मेरे बिजनेस में इंपॉर्टेंस है. आई कांट जस्ट लीव इट सेइंग कि अभी एग्जाम्स है तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, या पीपल हैव गॉन गॉट सीरियस तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, पीपल हैव गॉन ऑन हॉलिडे तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, सीजन चेंज हो गया तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा. ऐसा नहीं होता. यू नीड टू हैव सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन सर्विसेज, यू नीड टू हैव ऑफर्स, डील्स दैट अलाउ पीपल टू यू कैन से टू पार्टिसिपेट और टू विन ओवर, राइट. ओके, एंड टू गिव यू रेवेन्यू. ठीक है. तो ये सब चीजें कैसे होती है? ये सब चीजें होती हैं आपके एक प्लानिंग से, कि आप प्लानिंग कैसे करते हो. 90 डेज का जो प्लान होता है, जो हम हमेशा मेंटेन करते हैं कि यार 90 डेज में हमें ये इतना इतना करना है. ओके, सो आई एम सून कमिंग अप विद अ वीडियो ऑल्सो ऑन हाउ टू प्लान योर 90 डेज इन बिजनेस, where I'll be showing you how I plan my 90 days. So that's soon going to happen within this week only. I'll be putting up that video, and we'll also be talking about कि वो 90 डेज के साइकिल में आपको क्या क्या मॉनिटर करना चाहिए, और उससे नेक्स्ट साइकिल के लिए आपको कैसे प्लान करना चाहिए, राइट. सो लाइक वी प्लान आवर बिजनेसेस इन 4 स्लॉट्स. ओके, Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, the first 4 months, that is from April, May, June, April to June, right. Then July, August, September, then October, November, December, and Jan, Feb, March. ओके, तो इस तरीके से 4 क्वार्टर हो गए बिजनेस के, मतलब 4 हिस्सों में हमारा बिजनेस डिवाइड हो गया, राइट. किस क्वार्टर की क्या जरूरत है, कहाँ पे मार्केटिंग हैवी होनी चाहिए, कहाँ लाइट होनी चाहिए, कहाँ हमें किस चीज पे बजट देना है, कहाँ हमें कम बजट में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और कहाँ हमें ज्यादा बजट डालना पड़ेगा टू गेट द रिटर्न्स. ओके, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू रन दीज ब्लैक फ्राइडे डील्स या फेस्टिव सीजन सेल्स, ये सब इजी नहीं है. रीजन बीइंग, you will always find that Facebook and Instagram का जो ROI है, या गूगल का, इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल गूगल ऑल्सो, किसी भी फेस्टिव टाइम में या किसी भी ऐसे टाइम में जहाँ पे कि इट्स बट ऑब्वियस फॉर कंपनीज टू पुट अप एड्स, यहाँ का जो ROI मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो काफी कम हो जाता है. मतलब मान लो अगर आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो आपके एड बजट में,
फॉर एग्जाम्पल, ओके। अभी आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस में, और अगर मान लो आपको कुछ लीड्स मिल रही हैं जो कि आपको कन्वर्जन करके और सब करके आपको वो लीड मिली 700 रुपए पर लीड, राइट, ओके। वेर एज अगर आप नॉन फेस्टिव का अगर आप कंपेयर करोगे यही सेम डेटा, तो कभी कभी नॉन फेस्टिव टाइम में मान लो आपको एक लीड 500 रुपए में मिलती है या 450 रुपीज में मिलती है, ओके। सो दिस इज द काइंड ऑफ वेरिएशन दैट यू सी ऑन फेस्टिव सीजन एंड नॉट ऑन फेस्टिव सीजन। बट फिर भी लोग क्यों करते हैं? क्योंकि आप कुछ ना कुछ लमसम दे रहे होते हो उधर। जैसे आपने फेस्टिव ऑफर्स देखे कैसे रन होते हैं, 5,000 की शॉपिंग करो तो इतना फ्री, राइट, ओके। तो आप अपना वहां पे ऑलरेडी रेवेन्यू बढ़ा चुके हो कि भाई कम से कम तुझे 5,000 तो खर्चा करना पड़ेगा। अब नाउ यू हैव बिकम माई लीड, इफ यू वांट टू गो इनटू माय सिस्टम एंड गेट द डिस्काउंट, तुमको इतना तो खर्चा करना पड़ेगा, राइट। एंड दैट 5,000 इज द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, ओके। तो 5,000 में से अगर आप 600 या 1,000 रुपीज माइनस कर दो, इंक्लूडिंग मार्केटिंग कॉस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर लीड, उसको यहाँ तक लेके आने के लिए अगर आपने 1,000 रुपीज माइनस कर दिया, तो 4,000 आपका शॉर्ट रेवेन्यू है उधर, राइट, ओके। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज वर्क करती हैं, okay. So when in 2021 when I was lost, okay. I lost my business because everything was going into losses, okay. So same year ka same timing tha, November December, where all of these things happened. I said to myself, yaar ye to, like, it's not happening the way it should. And then we realized that we have to put up the stories together, like, कि क्या करना चाहिए. That's when I attended a very good workshop by one of my coaches. He's from North America. And there they have this very powerful visualization technique. मतलब it doesn't matters कि आप एक बिजनेस ओनर हो या आप उस बिजनेस के लिए काम करते हो, बट दिस विजुअलाइजेशन टेक्निक कैन वर्क एनी विच वेज, राइट. सो देयर कैन बी वन थिंग दैट यू आर अ बिजनेस ओनर फॉर द ब्रांड, राइट, टुडे व्हेन यू आर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, ओके, कि आप एक बिजनेस ओनर हो एंड आप उस पर्सपेक्टिव से बिजनेस के बारे में सोचोगे कि मुझे इस बिजनेस को चलाना है या मैं इस बिजनेस में क्या अच्छा देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ इन द फ्यूचर, राइट. Whereas if you are a person working for this brand, you will position yourself in the coming days over a specific function that you are handling in a business, okay. तो आपको वो विजुअलाइज करना है कि मैं इस बिजनेस में अपने आप को कहाँ देखता हूँ या देखती हूँ एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ओके, राइट. तो फ्यूचर में मैं क्या चीज देखती हूँ कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, राइट, ओके. फ्यूचर में मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि यहाँ पे मेरी पोजिशनिंग अच्छी हो जाए, राइट, अलोंग विद माई क्लाइंट्स एंड विद द बिजनेस. So this is how this visualization techniques work, okay. So what we do here today is that soon we'll be now switching on to this activity which has got lots and lots of layers, okay. So धीरे धीरे एक एक लेयर पील होगा, and somewhere there'll be also some questions also because you are doing it for the first time, okay. So you don't know what it is. Now for me, I know exactly what it is because I have done it multiple times, right. So for you guys, if you're doing it first time, it's very much possible that कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में जब मैं आपको बोलूंगी कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मे बी दैट यू डोंट नो दैट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट. So what you're going to do is, for now, you can make a note that this is something that needs to be fit here in my business. And then later you can fill those gaps. Maybe by asking the person who's running the business solely core by core, or by asking yourself कि यार अगर मेरे business में ये gap है तो मुझे इसको कैसे fix करना है. Right, okay. Also at the end today when we finish with this, it will take around 20-25 minutes for us to figure this whole thing out. And in the next 20-25 minutes after we finish this whole paper that you're having today is going to become an asset for your company. ओके, हाउ. नंबर वन, बहुत लोगों को आपने देखा होगा वो लोग अपने विजन बोर्ड्स जो होते हैं या जो अपने विजुअलाइजेशन के जो बोर्ड्स होते हैं उनको अपने टेबल पे या आसपास कहीं लगा के रखते हैं, right, so that they see or have a look at it almost every day and they are able to visualize कि यार ये चीज सही जा रही है कि नहीं जा रही है, okay. So that's one thing because visualization is like कि आप फ्यूचर देख रहे हो, ओके. तो आपको डेफिनेटली नीचे जाता हुआ तो देखना ही नहीं,
right? Even if you feel that this is non-achievable, okay, because we are doing this just for the next year, like we are visualizing only the next year right now, okay, तो कुछ चीजें ऐसी लगेंगी कि यार थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं लग रही है, like you know, I would say still write it, because you don't know the power of visualization. नॉट नेसेसरी कि आपका बिजनेस हमेशा पॉजिटिव ही चलेगा, बट विजुअलाइजेशन की वजह से यू गेट एन अपर हैंड कि दिस इज समथिंग दैट आई टारगेटेड, ओके। तो कुछ अगर आपने ऐसा भी टारगेट किया था जो अगर पूरा नहीं हुआ सपोज, तो भी यू हैव दैट पावर कि यार दिस इज समथिंग दैट आई टारगेटेड, तो अगर पिछले साल नहीं हुआ तो इस साल तो हो ही सकता है, राइट? सो दैट काइंड ऑफ लिंकेजेस स्टार्ट हैपनिंग, okay, and this visual then later once we create this visual can be used at various places, okay. So I'll tell you the benefits also of using these, because somewhere this is something that we are realizing right now कि like you know ठीक है हमने बना लिया अपने बोर्ड पे लगा लिया, but उसके बाद क्या, like you know what starts, okay. So that also I'll be sharing as to what you can do so that this piece of paper or this piece of work becomes a message for your business, okay, and it reaches your clients. So we have this plain sheet of paper, have a big sheet of paper, right? It gives you space to write more, okay, think more.